ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ بالکل. میں ذرا لکھ لوں نام. ہاں اب ہمارے ساتھ جن لوگوں نے جو لوگ شامل ہوئے ہیں پروگرام میں، ان میں ڈاکٹر فصاحت، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ پیڈیاٹیشین ہیں بچوں کی. واہ واہ بیٹا، ذرا دکھائیں تو میری ٹیبل جو ہے وہ آج جمپنگ کاسل کا کام کر رہی ہے. یہاں آپ دکھا سکتے ہیں. یہاں ہمارے ساتھ ثنا اور بلال تو ہیں جن کے بچوں کا نام ہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج، اور دیکھتے اس میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. ڈاکٹر فصاحت نے ابھی جوائن ان کیا ہے، بچوں کی غذا کے بارے میں بتائیں گے وہ. اور ہمارے ساتھ یہاں دو مائیں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جو کہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ایک تو بچوں کی غذا، ساتھ ساتھ اپنی بھی غذا کی پریگننسی میں کس کس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے غذا میں. انہوں کوئی توڑنے اور لگنے کی چیز تو نہیں ہے بس یہاں پہ، بس میں یہ دیکھ لوں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہنے میں کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے. ہاں بس جی. کہ اب تو آپ ماشاءاللہ اب تو مائیں ہو گئی بڑے بڑے بچوں کی، لیکن آگے بھی تو نسل بڑھائیں گی. بالکل بالکل بالکل. دیکھیے پریگننسی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ماں کی غذا پریگننٹ ہونے سے پہلے اچھی ہو تو سب سے بیسٹ ہے. ایک عورت کی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں ٹوٹیں گی. ہاں میں شیشے کی چیزیں میں سوچتی ہوں اٹھا لوں کہیں، یہاں رکھ لوں. یہ ایسا ہوتا ہے ویسے گھروں میں بھی. لائے شیشے کی چیزیں ہٹا لوں. کہاں رکھ دیا بیٹا وہ میں نے. ہاں جی کنٹینیو کریں آپ. بیسکلی یہ تھا کہ جب اگر ماں پریگننٹ ہونا چاہ رہی ہے، اس کو پتہ ہے 1-2 سال میں اب وہ دوبارہ پریگننٹ ہوگی، حاملہ ہوگی، تو اس دورانیے میں اگر اس کی غذا اچھی ہوگی، ہیلدی ہوگی، اس میں اس کی غذا میں پھل، سبزیاں، دودھ اور گوشت کی تھوڑی مقدار، یہ سب مناسب مقدار میں، اور اس کا وزن نہ کہ وہ وزن کم ہو نہ کہ وہ وزن زیادہ ہو، ایک نارمل ویٹ ہوتا ہے. تو بہت اچھا ہوتا ہے جب ماں پریگننٹ ہونے سے پہلے اپنی غذا کو، اپنے وزن کو صحیح رکھے. اچھا اگر پریگننسی کے دوران اسے خیال رکھنا ہے تو اپنے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ دیکھیں جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی کمی بڑی جلدی ہو جاتی ہے پریگننسی میں. خاص کر آئرن ہے، مائکرو نیوٹرینٹس میں زنک ہے، آپ کا وائٹامن اے، وائٹامن ڈی ہے. تو ان خاص کر آئرن آپ دیکھیں نا، اس وقت کراچی، اس وقت پاکستان کا جو ابھی 2011 کا سروے جو ان آفیشیل رپورٹس آئی ہیں تھوڑی بہت، اس میں بتایا ہے کہ 50% مائیں ڈیورنگ پریگننسی انیمیا کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس میں 26% جو ہوتی ہیں وہ نیوٹریشنل انیمیا. تو یہ بڑا پروپورشن بہت زیادہ ہے. کیا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ پریگننسی کے دوران کچھ مائیں بلائنڈ بھی ہو جاتی ہیں. وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی، مطلب دیکھیں نائٹ بلائنڈنس تو گریجولی ہوتا ہے نا، لیکن وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہمارے ملک میں بہت مطلب زیادہ ہے بنسبت دوسرے ممالک میں نا. تو اسی لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وائٹامن اے ہے، آئرن ہے، زنک ہے، آیوڈین ہے. جیسے آیوڈین کی اب شکایت تھوڑی کم ہوئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں آیوڈائز سالٹ بڑی مقدار میں، اور اس کی جو پبلک اویئرنیس ہے وہ زیادہ بڑھا دی گئی ہے. اسی طرح آئی تھنک آئرن اور وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہے، تاکہ یہ بڑی میجر آپ کو پتہ ہے بچوں میں ریکٹس جو ہو جاتا ہے، ریکٹس ہو جاتا ہے، جو آپ کی ہڈیاں ہیں نا، آپ کے جو لیگز ہیں نا وہ تھوڑے مطلب ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ماؤں میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی تھی اور بچوں میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی، کیونکہ جو ماں میں کمی ہوگی وہ بچوں میں تو ٹرانسفر ہونی کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے بچوں کی غذائیت کے حوالے سے اور اپنی غذا کے حوالے سے؟ تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب بچہ فیڈ پہ ہم اس کو ٹاپ فیڈ سٹارٹ کراتے ہیں جو کہ 6 مہینے تک تو آپ کو بالکل نہیں کرانی چاہیے. اگر آپ بریسٹ فیڈ کر سکتے ہیں تو ایکسکلوسیولی آپ اس کو 6 مہینے تک بریسٹ فیڈ کرائیں، پھر اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے سالڈ فوڈز استعمال کریں. جی بولیے. سوری آپ. نہیں تو میں یہ کہتی کہ موسٹلی جو مدرز ہوتی ہیں نا ان کو گھر میں سب کہنا شروع کرتے ہیں دا مدر دا ویریئر، کہ وہ جو ہے بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں کون سے میلز جو ہیں میں کیسے انٹروڈیوس کراؤں. نارملی آپ کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ کون سا رائٹ ٹائم ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ ایک نیا میل انٹروڈیوس کرائیں. جیسے ایک میل آپ نے شروع کرایا ہے، ایک کھانا فار ایگزامپل آپ نے دلیا کھلانا شروع کیا ہے، صحیح ہے. تو اب نیکسٹ جو ہے رائٹ ٹائم کون سا ہوگا کہ آپ اس کو کوئی اور
नेक्स्ट चीज इंट्रोड्यूस करें? देखिए, अगर 6 महीने के बाद तो आप ग्रेजुअली एक एक खाना इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऐसे खाने होते हैं जैसे गोश्त, मुर्गी, मछली ना, उसको आप थोड़ा देर में कर रहे होते हैं। जैसे आपने 6 महीने में आपने क्या शुरू किया, लेट्स से अगर आपने दलिया शुरू किया ना, अब दलिया की भी काफी फॉर्म है ना, खिचड़ी भी हो सकती, चावल भी हो सकती। कभी भी एक साथ 3 खाने या 2 खाने या मिक्स खानों को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ये मैं पूछना चाहती हूँ इससे इसमें क्या होता है, नुकसान क्या, मतलब पता है क्या, अब फर्ज किया आपके बच्चे को डायरिया हुआ ना, और आपने उसमें खिचड़ी या 2-3 चीजें सब चीजें मिला के ब्लेंडराइज कर दिया और खाना तैयार कर दिया। बच्चे को डायरिया हुआ, बच्चे को उल्टी हुई, अब आपको ये पता नहीं चल सकेगा कि कौन से खाने की वजह से हुआ है। तो हमेशा अच्छी बात है कि एक खाने को एट अ टाइम छोटे मकदार में इंट्रोड्यूस करें और फिर ग्रेजुअली उसकी मकदार बढ़ाएं, फिर दूसरा खाना नेक्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करें। कभी भी 4-5 खानों को एक साथ ना इंट्रोड्यूस करें। क्वांटिटी में आपको बताऊं, पोर्शन अभी से आपको सोचना चाहिए, एक बच्चा है उसका पोर्शन कितना होगा। कि जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा जबरदस्ती खिलाते, बच्चा जब पेट भर जाएगा ना, वो खुद ही हट जाएगा। नहीं तो माओ को जो पीछे जो भागना होता है ना, उसकी जरूरत नहीं होती। एक्चुअली आज मेरा सारा ध्यान जो है वो इनकी तरफ है, और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती होगी कि मुझे यहाँ कुछ और जो बच्चों की चीजें रखनी चाहिए थी, ये चीजें हटा लेनी चाहिए थी। मुझे लगता है मेरी प्रॉप्स कल तक जिंदा नहीं रहेंगी। मेरा सारा ध्यान उधर है। खुदा के लिए इसको उठा लो, उसको बच्ची को पकड़ने वाला है। ओह माय गॉड, ओह माय, वो चाय पी रही है क्यूट हो मेरी जान। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे जो एक्टिव होते हैं इतने, तो उनको क्या चीज़ ऐसी खिलानी चाहिए जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाते हैं? उनकी ग़िज़ा में क्या चीज़ शामिल रखनी चाहिए? ये अलर्टनेस का जो लेवल होता है, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट से अलर्टनेस ज़्यादा बढ़ती है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमें स्लो डाउन करते हैं। हाँ। तो यूजली जैसे हम मीठा खाते हैं या चावल ज़्यादा खाते हैं, हमें भी नींद आती है, वी गो टू स्लीप। तो हम अगर हाई प्रोटीन डाइट लें, स्पेशली जब हमें ज़्यादा एक्टिविटी करनी होती है, बच्चों को भी स्कूल जाना है या दिन में एक्टिविटी करनी है, तो उनको लेस कार्बोहाइड्रेट, मोर प्रोटीन दिया जाए। अच्छा। और जब उनको सुलाना है तो आप मोर कार्बोहाइड्रेट दे दें तो सो जाएंगे। ये तो बड़ा अच्छी टेक्निक बता दी भाई माओ को। नहीं पता, देखिए मैं आपको, आई एम गोइंग टू कॉन्ट्ररी, देखिए एक नॉर्मली बच्चा ग्रो हो रहा है ना, बच्चे की तो ग्रोथ जो 1 साल से जो 4-5 साल तक तो बड़ी स्पर्ट पे जाती है ना, तो नॉर्मली उस बच्चे को प्रोटीन देना चाहिए। प्रोटीन तो बहुत ही जरूरी है, बट ये कहना कि हम प्रोटीन को बहुत ज्यादा हाई करें, वो आई विल नॉट एग्री, क्योंकि एक मकदार होती है उतना प्रोटीन दें। मतलब कहने का मकसद ये था कि मतलब आपने जैसे पूछा कि अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस, तो यूजुअली एक जो वैसे तो जो बैलेंस डाइट है उसमें तो फिर हर चीज इंक्लूड होगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। लेकिन जो चीज डे टाइम में अगर आपने कोई एक्टिविटी करनी, बल्कि ये एक मरतबा एक इंस्टीट्यूट बाकायदा खुला है इंग्लैंड में, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल साइकेट्री, तो उसमें बाकायदे वर्किंग हुई भी है कि हाउ डिफरेंट फूड्स कैन इफेक्ट। जैसे चॉकलेट है, वो बच्चों को, जैसे हम लोग तो बहुत मना करते हैं, नहीं, इट स्लोज डाउन, इट इज हैविंग अ वेरी सूदिंग इफेक्ट। अच्छा, लेकिन चॉकलेट तो मीठी है, और मीठी चीज जब भी आप बड़ा भी खाता है कोई, तो वो स्पेशली चॉकलेट के तो बहुत वंडर्स आ रहे हैं। इट इज कार्डियो प्रोटेक्टिव। अभी रिसेंट टाइम में यह आया है कि वो आपको स्लिम कर देता है, रादर आपको ओबीस करने के बजाय चॉकलेट स्लिम जो आप लेटेस्ट एडिशन जो है, आप टाइम मैगजीन में इसको देखें। अच्छा, आप उस चॉकलेट के साथ अगर एडअप करें शुगर, इफ यू टेक डार्क चॉकलेट, तो दैट इज मोर इफेक्टिव। डार्क चॉकलेट को कुछ होता है 70% कोका जो होता है, आप अगर उसमें कैरामल ऐड कर रहे हैं, उसमें आप नट्स ऐड कर दें, ज्यादा बेहतर। बेटा ये डॉक्टर है, इंजेक्शन लगाते हैं, तो दैट्स व्हाई, सो डेफिनेटली, बल्कि ये उन्होंने दिखाया था एक, आई एम सो सॉरी सर, दिखाएगा ये बच्चे को, ये अपना बिस्तर समझ रहा है, फुल लेट चुका है ये माशाल्लाह। मतलब हम तो महसूस हो रहे हैं सबकी बातों से और डॉक्टर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, मगर मुझे बहुत मजा आ रहा है इनकी हरकतें देखने में। अरे अल्लाह। अच्छा, एक चीज जो हम लोग जो इग्नोर करते हैं डाइट में, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा। जैसे जिंक है, ठीक है ना, डॉक्टर अमीन ने बताया आयरन है, आयोडीन है, विटामिन ए, विटामिन। तो अभी जिंक का जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा इलैबोरेट हो रहा है। ये तो है, ये जरा जो लोग हमें देख रहे हैं उनको बताइए कि ये किन चीजों में ज्यादा मिलेगा?
बच्चों को अगर खिलाएं आप बताइए। लाइक देखिए ना, जिंक का रोल जो होता है ना, मेंटल जो डेवलपमेंट होती है ना, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आपकी जो किसमें मिलेगा जिंक? अच्छा, जिंक बेसिकली आपके एनिमल फूड में मिलता है, ठीक है ना। जो एनिमल फूड होते हैं जिसमें गोश्त है, मुर्गी है, मछली है, अंडा है, इसमें मिकदार जिंक की ज्यादा होती है। ये तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मैं आज सोच रही हूँ मैं यहाँ बैठ के होस्टिंग करूँ। हाँ अब बोलिए, आप कहिए जी। तो ऐसे खाने जो आपको गोश्त, मुर्गी, मछली होते हैं, अंडे होते हैं, उसमें जिंक ज्यादा होता है। लेकिन अगेन मैं ये बोलूंगी, किसी एक खाने या किसी एक न्यूट्रिएंट की तरफ से बेहतर है कि अगर हम अपनी माओं को, अपनी उन औरतों को जो प्रेग्नेंट होती हैं, एक बैलेंस कॉन्सेप्ट सिखाएं ना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में अभी जो 2011 के सर्वे ने दिखाया, वो ये दिखाया कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी 2001 से कोई इतनी कम नहीं हुई है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से एजुकेशन और उनको अवेयरनेस और उनको किस किस्म के खाने खिलाने चाहिए बच्चों के लिए भी और माओं के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग कोई सवाल करना चाहेंगी? जी डॉक्टर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो दांत निकलने की एज होती है वो सही क्या होती है? दूसरे ये कि इसमें ग़िज़ा बच्चों की थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत होती है। मतलब मेरा बेटा हो रहा है 1 ईयर का, अभी तक इसके मतलब सब कह रहे हैं सिम्टम्स हैं, दांत निकल रहे हैं, लेकिन 4-5 मंथ हो गए, दांत का कहीं नामो निशान नहीं है और बच्चा मतलब इरिटेट ज़्यादा रहता है। दांत 5-6 महीने से शुरू हो जाते हैं बाद बच्चों में, उससे पहले भी बाद केसेस में होते हैं, लेकिन इससे दांतों से पहले जो होता है माउथिंग का पीरियड होता है। हर चीज उठा के बच्चा मुंह में डाल रहा है ना, बुरा हंसते और प्लास्टिक की चीज मुंह में डाल, जो उसको सलसलाहट हो रही होती है। तो एक्चुअली ये भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अल्लाह की तरफ से, क्योंकि आप अपने एनवायरनमेंट की जो जरासीम है और एनवायरनमेंट में जो कुछ है उससे इंट्रोड्यूस होते हैं और इट्स क्रिएट्स एन इम्यूनिटी इन योर बॉडी। अरे ये बड़ी अच्छी बात, बॉडी में एक इम्यूनिटी क्रिएट हो रही होती है। हम चिड़े होते हैं कि बच्चा हर चीज, लेकिन उसमें बास चीजों का एहतियात करें, रफ बन रहा होता है, लेकिन कुछ चीजें बिल्कुल बच्चे के मुंह में ना जाएं। चाबियां, चप्पल और मोबाइल फोन जो होते हैं, इनमें जरासीम जितने हैं मेरे ख्याल में किसी चीज में नहीं होते। सबसे ज्यादा ही बच्चे मोबाइल में ले रहे होते हैं। मोबाइल फोन्स को बिल्कुल मुंह में ना लेने दिया करें। ये देखिए, और इसलिए मोबाइल दे रहे होते हैं कि चलो बच्चा जरा खामोश। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हम और बात करें, लेकिन आज जो बेसिकली प्रोग्राम हमने रखा है वो सना और बिलाल के बच्चों के नाम रखने, और अरीब और अरीबा एक नाम आ चुका है। आप हमें नाम और सजेस्ट करें, फोन कॉल से बताएं, SMS करें कि हम इन 2 प्यारे प्यारे ट्विंस बच्चों के नाम क्या रखें। साथ बच्चों के नामों के बाद अब मैं सेकंड स्टेप पर आऊंगी। अगर आप समझती हैं मुझे कि मैं एक जिम्मेदार लड़की हूं और आपके बच्चों के घर बसा सकती हूं, तो मुझे SMS कीजिए 4646 पर, या फिर feedback@gmp.tv, या फिर मैं भूल गई 1 मिनट, feedback@gmpakistan.tv, सही है ना? हाँ, इस पर मुझे मेल करें। रजिस्ट्रेशन नंबर चल रहे हैं, फोन कर रजिस्टर कराएं अगर आप अपने बच्चों का रिश्ता कराना चाहती है। साथ तस्वीर और लेटर जो भी लिखना चाहते हैं वो D120 साइट एरिया कराची पर लेटर्स भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ब्रेक पे जा रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नामों पे ऊपर। अरे टूट जाएगी, ब्रेक पे जाइए जनाब, आज तो मैं गई सोची।